Okay, very good evening to one and all. Yesterday we discussed till question number 90, I guess, and today we will be going ahead of 90, and there are some good questions in today's discussions, which are like specially introduced, new, and quite conceptualized. Right, some of them are really good. I find out them good. So let's start. So let's have a look at starting with question number 91, which was directly taken from your notes, which was taught in the energy booklet where we studied about petroleum. And we do talk about the migration of oil and the accumulation of oil under the oil traps. Right? That was one of the things where we do touch up this thing. But let's have a look at the question, what question number 91 says. So as far as the question is concerned, so question number 91 says, arrange the following stage of formation of petroleum deposits from initial to the last. Means we have to arrange them starting till end. So quite obvious whenever you talk about the initial part. So as all of you are aware that the petroleum is being formed by the fossilization of marine animals, by the fossilization and decomposition in billions and billions of years. It's not like that it formed every day. So quite obvious, the first it has to be like there should be generation of petroleum. So anyways, it has to start from sea. The generation has to be there for petroleum. After that, anything will start. So means the moment I know that generation से start होना है तो ये ऑप्शन तो आपका चला गया और ये भी ऑप्शन आपका चला गया. Now there is a tie between the two options, which is third and fourth, right? And quite obvious when there is a generation of oil, we do talk about that generation के बाद आपका oil जो है वो migrate होना है. हमने ये बात भी किया था जब हम पढ़ रहे थे कि अगर आपका oil generation हो जाता है, then after that there is a migration of oil. मैंने ये आपको पढ़ाया भी था, migration of oil and oil traps. ठीक है, migration of oil. तो वंस द ऑयल माइग्रेशन इज गोइंग ऑन, तो ऑयल को जब कुछ पोरस और परमेबल मटेरियल ज्यादा मिल जाएंगे, वहां पे ऑयल की माइग्रेशन हो रही होगी, तब कुछ कुछ ऑयल का होता है सीपेज. राइट, इसे आप कहते हैं रिसाव. ठीक है, ऑयल कहीं भी रीस सकता है डिपेंडिंग अपॉन वेदर यू हैव द परमेबल पोरस एक्विफर देयर और नॉट. तो आफ्टर द माइग्रेशन ऑफ ऑयल वी डू हैव सीपेज. And after the seepage, the oil has to accumulate somewhere so that further you can extract out. And finally, it will lead to the accumulation of oil. So these are the stages, if you can see. So first we have to have the generation, which is C. Then we have to have the migration of the oil, which is A. And then we have to have the seepage, which is B. And finally, it is accumulation of oil, which is D. The order, तो इनिशियल जो आपका पार्ट था वो ये था, इनिशियल, एंड फाइनल पार्ट था आपका एकोमुलेशन. तो इनिशियल से लेके फाइनल तक की ऑयल की स्टोरी कुछ इस तरह की है. सो द करेक्ट आंसर हेयर वुड बी फोर्थ. फोर्थ वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 91. आई होप इट इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन. किसी को कोई डाउट तो नहीं है कि 91 का फोर्थ क्यों है? एनी वन हैविंग एनी क्वेश्चन टिल हेयर? 91 द करेक्ट आंसर इज फोर्थ. एनी वन हैविंग एनी डाउट और 91? जल्दी से बताइए फटाफट, क्विकली, बिकॉज वी हैव टू डिस्कस अ लॉट ऑफ अदर क्वेश्चन. जल्दी से. नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्टली आपकी बुकलेट से आया है. आप इसको ऑलमोस्ट आजकल 10th क्लास से पढ़ते हुए आते हैं. मैंने भी आपको 3 या 4 टॉपिक में पढ़ाया है. पहली बार हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में पढ़ा था, उसके बाद हमने एयर पोल्यूशन में पढ़ा था, राइट, और तीसरी बार हमने ये कुछ कुछ जो है आपका डायनेमिक्स में देखा था. तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको ये पता है कि ईएलआर का वैल्यू क्या होता है. राइट, क्वेश्चन नंबर 92, वी आर डिस्कसिंग सेट एक्स of the paper which happened on 18th of June 2024. The normal lapse rate, जिसको आप environmental lapse rate भी कहते हो, of temperature per kilometer is. तो ये तो सबको ही पता है कि जो नॉर्मल लैप्स रेट है आपकी ईएलआर जो होती है
This is also called as minus of dt by dh, that is equal to 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर होता है विद द साइन ऑफ माइनस। माइनस साइन क्यों होता है गाइस? बिकॉज माइनस साइन इंडिकेट डिक्रीज इन टेम्परेचर, और कुछ नहीं है। नेगेटिव साइन फॉर डिक्रीज इन टेम्परेचर विद हाइट, और कुछ नहीं है आपसे अगर कोई पूछे। डिक्रीज विद हाइट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका 6.4 हो जाएगा, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली वही वैल्यू दी हुई है, 6.5 तो एग्जैक्ट है नहीं। तो करेक्ट आंसर विल बी थर्ड हेयर। सो द क्वेश्चन नंबर 92, द करेक्ट आंसर इज थर्ड। और ये कई बार मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन आया हुआ है, आपके असाइनमेंट में भी है। करेक्ट आंसर इज 6.4 डिग्री सेल्सियस, राइट। क्योंकि पर किलोमीटर पूछा है, तो 6.4 डिग्री सेल्सियस और 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ड्रॉप होता है आपका 1 किलोमीटर में, अगर आप नॉर्मल एनवायरनमेंट की बात करते हैं। अरे जनरेशन, ऑयल जनरेशन होता है बेटा, आपने लेट ज्वाइन किया है लग रहा है। जनरेशन, ऑयल जनरेशन। ऑयल कैसे फॉर्म होता है? फॉर्मेशन ऑफ ऑयल को ऑयल जनरेशन कहते हैं, प्रिया पाठक। क्या पूछना चाहते हो आप? जनरेशन क्या? हाँ जी, प्रिया पाठक जी, पूछिए पूछिए, जल्दी बताइए, क्या डाउट है आपका? मैं ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ 90 में, राइट। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर नाउ। अच्छा। फर्स्ट में जनरेशन ही तो कहा मैंने, तो सी तो पहले स्टार्ट किया ना। मैंने जो पिछले क्वेश्चन का आंसर मार्क किया है वो फोर्थ, तो पहले में जनरेशन ही लिखा था मैंने, आप शायद लेट ज्वाइन किया आपने। ठीक है, जनरेशन के बाद ही माइग्रेशन लिखा था, फिर सीपेज लिखा था, और फिर एकोमुलेशन लिखा था, राइट। एनीवेज कोई बात नहीं, आप दोबारा से रिकॉर्ड से चेक कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। 93 एक अच्छा क्वेश्चन है गाइस, विदाउट एनी डाउट इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, एंड वी हैव डन दिस मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स। हमने इसको वाटर वाले चैप्टर में भी किया, वाटर पोल्यूशन में भी किया, हमने कार्बोनेट कंपनसेशन डेप्थ सीसीडी वाला जो चैप्टर था वहां भी किया, और ये दोनों से मिला जुला के क्वेश्चन आया है। तो लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 93, राइट। 93 क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 कहता है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमें गलत बताना है कौन सा है, राइट। तो गलत बताना है तो गलत को ही पकड़ेंगे पहले जाके, ठीक है। और इसमें से काफी बार ये क्वेश्चन, कुछ कुछ चीजें इसमें से रिपीट हुई है, विदाउट एनी डाउट आई वुड से, राइट। देखते हैं हम लोग क्या क्या चीजें इसमें है। तो फर्स्ट अगर हम बात करें इसमें, जो आपका 93 क्वेश्चन है, पहला स्टेटमेंट देखिए क्या बोलता है। पहला स्टेटमेंट कहता है ऑक्सीजन डिसॉल्व इन सरफेस वाटर डज नॉट रिएक्ट केमिकली विद वाटर मॉलिक्यूल। तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने भी आपको बताया था, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, जो ऑक्सीजन आपकी है उसका इनफ्लक्स होता है फ्रॉम एटमॉस्फेरिक एयर टू वाटर, और बबल्स की फॉर्म में ये रीअरेट करती है, ये केमिकली रिएक्ट नहीं करती है, राइट। ये हमने वाटर वाले में पढ़ा बहुत ज्यादा, वाटर वाले यूनिट में, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन पे हम आते हैं, यहाँ पे आपका थोड़ा सा हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन भी दिखता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज इनसॉल्युबल इन बॉइलिंग वाटर। तो आपको ये बात पता है कि जब भी हम सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस की बात करते हैं इन वाटर, लिक्विड, तो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब जब आप उसको बॉईल करते रहेंगे, टेम्परेचर तो बहुत हाई होगा, ऑब्वियस सी बात है, 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होगा, तो आसानी से उसमें CO2 डिजोल्व नहीं होगी। तो CO2 इज ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन बॉइलिंग वाटर, राइट। तो ये भी करेक्ट है, अगर टेम्परेचर लो होगा या कम होगा तभी वो सॉल्युबलाइज हो सकती है। तीसरे स्टेटमेंट को देखते हैं, जो CO2 के बारे में कहा गया है। थर्ड स्टेटमेंट से रिमूवल ऑफ CO2 इंक्रीज द पीएच ऑफ वाटर। क्वाइट ऑब्वियस सी बात है, अगर आप CO2 को ज्यादा डिसॉल्व करेंगे वाटर में, तो आपका H2CO3 फॉर्म होगा, जिसको आप कार्बोनिक एसिड कहते हैं, जो वीक एसिड होता है, और वो एसिडिफिकेशन ऑफ वाटर बॉडी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये रिएक्शन हमने खूब पढ़ी है, मतलब दबा के रिएक्शन पढ़ी है, मैं बार बार आपको बताता भी था कि ये जो रिएक्शन है, मैं दिख देता हूँ दोबारा, कि अगर CO2 आपका वाटर में डिसॉल्व होता है,
So there is a formation of weak acid which is called H2CO3, which will give rise to H plus in one step, forming HCO3 minus, और दोबारा H प्लस प्लस CO3 2 माइनस। और ये जो H प्लस है, ये जो H प्लस है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिटी। और अगर कोई भी सोल्यूशन एसिडिक है तो पीएच उसकी लो होगी। वही स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर इसका उल्टा हो रहा है, इस बार CO2 बढ़ाई नहीं जा रही, CO2 कम की जा रही है, तो CO2 को अगर आप रिमूव करेंगे तो आपका सोल्यूशन अल्कलाइन हो जाएगा, राइट। तो ये ध्यान रखिए आपकी, अगर रिमूवल ऑफ CO2 होगा तो पीएच बढ़ेगी क्योंकि अल्कलाइन है, एंड चेंजेस द अल्कलिनिटी फ्रॉम कार्बोनेट टू हाइड्रोक्साइड, तो आपकी अल्कलाइन सोल्यूशन वहां पे बढ़ जाएगी और पीएच आपकी बढ़ती चली जाएगी। तो ये तीनों स्टेटमेंट ठीक है। अब चौथा जो स्टेटमेंट है उसको अगर आप ध्यान से पढ़ते तो ये वैसे ही ठीक हो जाता है, मतलब आपको जरूरत नहीं पड़ती, मतलब मैंने ये कम से कम भी 10 टाइम्स लेक्चर में भी पढ़ाया ठीक है ना। तो कम से कम 10 टाइम्स लेक्चर में भी हमने पढ़ाया है, और आप भी अगर इसको लिख के देखते तो आपको ये समझ में आ जाता है कि ये गलत लिखा हुआ है। देखो कैसे कहता है कि एडिशन ऑफ CO2 इन वाटर इंक्रीज कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मेशन प्रेसिपिटेशन। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं आपको करके दिखाता हूं विद द हेल्प ऑफ रिएक्शन कि जब आप CO2 का एडिशन करते हैं वाटर में तो कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन नहीं बढ़ती है, बढ़ती है तो कार्बोनेट की फॉर्मेशन बढ़ती है। देखो अभी देखते हैं रिएक्शन। ये बिल्कुल सिंपल सा है और बार बार ये आता है और ये कई जगहों पे लिखा हुआ है। देखिए CO2 आपका जब डिसॉल्व करेगा वाटर में, तो जो रिएक्शन मैंने अभी लिखी थी आपकी H2CO3, कार्बोनिक एसिड बनेगा वीक एसिड। लेकिन ये कार्बोनिक एसिड एज सच रहता नहीं है, पहले ये H प्लस और HCO3 माइनस में ब्रेक डाउन होगा, फिर ये HCO3 माइनस भी ब्रेक डाउन हो जाएगा H प्लस और CO3 2 माइनस में। तो हमारी जो स्पीशीज है वो किस फॉर्म में रह रही है, कार्बोनेट की फॉर्म में। यहाँ पे क्या कह रहा है कि इंक्रीज कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मेशन, नहीं, हमारे पास जो है कार्बोनेट फॉर्मेशन जो है बढ़ रही है, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मेशन नहीं बढ़ रही है। तो ये जो है गलत स्टेटमेंट हो गई और ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो करेक्ट आंसर जो है आपका यहाँ पे फोर्थ हो जाएगा, क्योंकि रॉन्ग पूछा है तो ये स्टेटमेंट ही रॉन्ग है इसमें बस सिर्फ। तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, राइट। फोर्थ जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि गलत स्टेटमेंट जो है वो फोर्थ ही है। क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? जल्दी बताइए। 93 इज फोर्थ, जल्दी बताइए फटाफट से। एनीवन हैविंग एनी डाउट इन 93? भाई रिस्पॉन्स करिए फटाफट, एज वी हैव टू यूटिलाइज एवरी मिनट। ठीक है, अभी आपका भी टाइम बहुत प्रीशियस है। किसी को कोई डाउट है 93 में? एक एग्जाम आपका फास्ट अप्रोच कर रहा है, दूसरा भी किसी भी समय आपको टाइम टेबल मिल सकता है, डेट मिल सकती है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे गाइस। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, वेस्ट से लिए किया गया है आपका, और ये रिसेंटली ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। ठीक है, 94 जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार ये आया है वेस्ट में, मैडम ने आपको पढ़ाया है। हायरार्की का डायग्राम भी आपको याद आता होगा जब आपको ये क्वेश्चन दिखता होगा। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। जब आप हायरार्की का, वेस्ट की हायरार्की का टेबल देखते हैं तो आपको दिखाई देगा कि भाई किस तरह का टेबल वो बनता है, मोस्ट फेवरेबल कौन है, लीस्ट फेवरेबल कौन है। तो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 94। कहता है अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ पोल्यूशन प्रिवेंशन फ्रॉम लीस्ट प्रेफर्ड टू मोस्ट प्रेफर्ड अप्रोच। मतलब सबसे कम आप किसको प्रेफर करना चाहेंगे और सबसे ज्यादा आप किसको प्रेफर करना चाहेंगे। ठीक है, लीस्ट प्रेफर टू मोस्ट प्रेफर। तो देखिए, सबसे ज्यादा प्रेफर्ड जो अप्रोच होती है ना, वो आपकी रहती है क्या, सबसे प्रेफर्ड जो अप्रोच रहती है वो आपकी रहती है पॉइंट सोर्स रिडक्शन, मतलब वेस्ट को आप रिड्यूस कर सके उसके सोर्स पे ही, राइट। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि जो सबसे प्रेफर्ड ऑप्शन रहती है वो आपकी रहती है क्या, वो आपकी रहेगी सोर्स रिडक्शन।
तो सबसे प्रेफर्ड अप्रोच मेरी सी होने वाली है। ये आपको पता है जब आप वेस्ट मैनेजमेंट वाली बात करते हैं। तो सबसे प्रेफर अप्रोच में मेरा आ जाएगा सोर्स रिडक्शन। हम लिख लेते हैं इसको क्योंकि लिखने से क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा रहेगा सोर्स रिडक्शन। ये सबसे प्रेफरेबल अप्रोच है। इसके बाद अगर कोई बात होती है तो वो बात होती है रिसाइकलिंग और रीयूज की। ठीक है। तो उसके बाद होती है रिसाइकलिंग और रीयूज। ये पहले भी आया हुआ है क्वेश्चन। रिसाइकलिंग और रीयूज की बात होती है। उसके बाद आप बात करते हैं वेस्ट सेपरेशन की। वेस्ट सेपरेशन। ठीक है। उसके बाद बात होती है वेस्ट सेपरेशन की। ठीक है। और वेस्ट सेपरेशन के बाद आपकी बात आती है वेस्ट कंसंट्रेशन की। मतलब जो प्रेफरेबल ऑर्डर है, वेस्ट कंसंट्रेशन। और वेस्ट कंसंट्रेशन के बाद लास्ट में आपको जो है मिलेगा जी क्या, वेस्ट ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट हम बहुत कम देखना चाहते हैं, जैसे लैंडफिल एंड ऑल, तो वो हम ज्यादा नहीं देखना चाहते। वेस्ट ट्रीटमेंट सबसे लास्ट में होगा। तो जो सोर्स रिडक्शन है वो सबसे प्रेफरेबल है गाइस, है ना, या सोर्स रिडक्शन या रिड्यूसिंग द वेस्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सी सबसे ज्यादा होगा आपका। ठीक है, सी ऑप्शन सबसे प्रेफरेबल है। फॉलोड बाय उसके बाद आपका रिसाइकलिंग और रीयूज आता है। ये आ जाएगा आपका ए में। राइट। उसके बाद जो अगली अप्रोच है आपकी वेस्ट सेपरेशन, वो आपका ई में आ जाएगा। राइट। और फिर आपका आ जाएगा बी, विच इज वेस्ट कंसेंट्रेशन। और लास्ट में आपका रहने वाला है ट्रीटमेंट, विच इज डी। तो ऑर्डर आप देख सकते हैं, सी सबसे ज्यादा प्रेफरेबली मैं देखना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि लीस्ट प्रेफर्ड क्या है, डी है, और मोस्ट प्रेफर क्या है, सी है। और डी के बाद आपका बी आ रहा है, फिर ई आ रहा है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे टू होने वाला है। ये क्वेश्चन पहले भी बहुत बार आया हुआ है। थर्ड टाइम मैं इस क्वेश्चन को देख रहा हूँ, मेरे जो याद आ रहा है। थर्ड टाइम मैं इसको क्वेश्चन को देख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 94 इज टू। किसी को कोई डाउट है 94 में, जल्दी बताइए। एनी वन हैविंग एनी डाउट इन 94, जल्दी बताइए। क्लियर है। तो ये क्वेश्चंस को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये अच्छे क्वेश्चंस हैं। ये आपको कभी भी मिल सकते हैं, विच एवर एग्जाम इज देयर। और जो री एग्जाम होने वाला है मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, देयर विल बी एटलीस्ट मिनिमम 10 to 15 क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम दिस पेपर। ये वाले पेपर से भी क्वेश्चन उसमें हो गया। आप ये ना माने कि ये कैंसिल हो गया है तो इसका इंपॉर्टेंस खत्म हो गया है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इसमें नए हैं, इंफॉर्मेशन नहीं है, विच शुड बी डाइजेस्टेड वेरी वेल। कुछ पुराने हैं, और कल पहले पेपर का भी डिस्कशन हुआ है क्लाउड में। अब हम इनको अपलोड करेंगे आज से सबको, तो आप उसको भी जरूर देखिए। लेटेस्ट क्लाउड में ये सारे मिलेंगे। तो पेपर वन भी सुमित सर ने डिस्कस किया है, सेट डब्ल्यू। ठीक है, और कुछ सेक्शन इसका यूट्यूब पे भी आपका अवेलेबल है। तो सेकंड यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका 94 का हो जाएगा। ठीक है, जस्ट अ मिनट गाइस।
ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइस। तो यहाँ पे आपका सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ये ध्यान रखिएगा, 94 सेकंड। क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार आता है और अप्रोच को जज करता है कि स्टूडेंट को होलिस्टिकली पता है कि नहीं पता है अबाउट ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द वेस्ट। अगला क्वेश्चन तो रिपीट हुआ है डायरेक्ट एकदम 2000। मैंने बताया था आपको कि जो 2023 दिसंबर का पेपर था उसी से डायरेक्ट रिपीट हो गया क्वेश्चन। तो इसमें कोई इशू था ही नहीं। मैंने फिर से दोबारा मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैंने तब भी बताया था कि जो आपका एसिडिक पीएच अगर हम लेते हैं तो आपको ये बात पता है, मैंने उस समय भी ये बताया था कि ये एक्चुअली वेरी कैसे करता है। आप इनिशियली लेते हैं H3PO4 2-। आप इनिशियली लेते हैं H3PO4। जस्ट अ मिनट। तो सबसे पहले हम लेते हैं H3PO4, इसको हम कहते हैं फॉस्फोरिक एसिड। जब इसमें से एक H प्लस आयन निकलता है तो आपका बनता है H2PO4-। यहाँ आप इसको कहते हैं डाईहाइड्रोजन ऑर्थोफॉस्फेट। जब एक H प्लस आयन और निकल जाएगा तो आप क्या बोलेंगे गाइस? मोनोहाइड्रोजन ऑर्थोफॉस्फेट। जब एक H प्लस आयन और निकल जाएगा, ये रिवर्सिबल रहती है रिएक्शन यहाँ पे, तो ये आपका फॉस्फेट आयन बन जाएगा। तो मजे की बात क्या है कि जब आपकी पीएच न्यूट्रल होती है तो ये दोनों स्पीशीज इक्वली अवेलेबल होती है। कौन कौन सी? ये और ये, एट न्यूट्रल पीएच, जब आप कहेंगे pH 7। लेकिन जब आप पीएच एसिडिक करते हैं तो खाली यही स्पीशीज अवेलेबल होती है, मतलब लेस देन 7। तो यहाँ पे 3 to 7 की रेंज पूछिए। और अगर आप एल्कलाइन करते हैं तो पीएच, तो ये स्पीशीज आपको ज्यादा मिलती है। तो क्योंकि यहाँ पे पूछा है आपको 95 में, विच ऑफ द फॉस्फोरस स्पीशीज विल डोमिनेटली एग्जिस्ट इन पीएच इन द रेंज ऑफ 3 to 7 इन नेचुरल वाटर, तो ऑब्वियस सी बात है ये पीएच जो है एसिडिक है। मैंने मेंशन भी किया यहाँ पे, ये पीएच जो एसिडिक रेंज में आएगी 3 to 7, तो आपकी ये स्पीशीज डोमिनेट करने वाली है। तो एसिडिक पीएच पे आपको स्पीशीज मिलेगी H2PO4-। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 के पेपर में एज सच आया था। हमने ये सोल्यूशन में मेंशन भी किया था कि ये दोबारा रिपीट भी हो सकता है। और यहाँ पे सेकंड वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। सेकंड वुड बी द करेक्ट आंसर, H2PO4-। किसी को कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 95 में? जल्दी बताइए। एनीवन हैविंग एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर 95? जल्दी से बताइए, किसी को कोई डाउट है इसमें? चलिए, डिटेलिंग आपको अच्छे से करनी है क्योंकि यू नेवर नो द नेचर ऑफ द एनटीए। रिपीटिशन इज फेवरेबल चॉइस ऑफ एनटीए विद सम ऑफ द कॉन्सेप्ट। ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा है, और ये जिसको सॉइल टाइप पता था वो इसको देखो, पहला सबसे अच्छा और मजेदार हिंट जो इस पेपर इसमें था वो आप इजीली कैच कर सकते थे। ठीक है, मतलब इतना इजी कैच कर सकते थे कि आप इसको बिल्कुल इजीली रूल आउट कर सकते थे। जहां हमने आपको वेटलैंड पढ़ाया है क्वेश्चन नंबर 95 की जब बात करें आपसे, तो आपको मैचिंग करने के लिए दिया हुआ है दो कॉलम को लिस्ट। फर्स्ट पहले में फॉरेस्ट टाइप दिया हुआ है, दूसरे में सॉइल टाइप दिया है कि किस फॉरेस्ट में किस तरह की सॉइल होती है। तो मैं अगर आपकी जगह होता तो पहले मैं ये देखता कि सबसे इजी गोइंग ऑप्शन क्या है। तो अगर आप यहाँ पे देखें, जो पीट सॉइल है बॉग फॉरेस्ट में वो आपकी मिलती है। तो बॉग फॉरेस्ट जो होते हैं उसमें पीट सॉइल मिलती है। जैसे ही D3 पे क्लिक किया, दो ऑप्शंस की यहां से छुट्टी हो जाएगी। एक तो ये साहब चले जाएंगे और एक ये साहब यहां से चले जाएंगे, बट स्टिल आई एम नॉट श्योर विच वन टू गो अराउंड। फिर भी मुझे और ज्यादा नॉलेज की जरूरत है इसमें, क्योंकि एक ऑप्शन तो मैंने इजीली आइडेंटिफाई कर लिया कि जो बॉग सॉइल होती है, सॉरी पीट सॉइल होती है, वो बॉग टाइप के फॉरेस्ट में होती है। ठीक है, इनको बॉग भी कहते हैं और इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि एसिडिक है ये। ठीक है, एसिडिक, हाईली एसिडिक। ठीक है, हाईली एसिडिक रहता है ये पीट जो सॉइल है, एसिडिक, ये हमने पढ़ाया भी है आपको। अच्छा, उसके बाद जो आपके टैगा स्प्रूस फॉरेस्ट है, इनका कैरेक्टरिस्टिक्स है पोडोजोल। ठीक है, जो टैगा स्प्रूस फॉरेस्ट है इनमें पोडोजोलिक सॉइल होती है। अब देखो, पोडोजोल के और क्या क्या नाम है? पोडोजोल को आप और क्या कह सकते हैं? पोडोजोल इज ऑल्सो नोन एज स्पोडोसोल। पोडोजोल का ही नाम क्या होता है? स्पोडोसोल्स। ठीक है, इसका और भी नाम होता है। ठीक है ना?
ठीक है, इनका नाम और क्या होता है, एपोडोसोल्स। ठीक है, स्पोडोसोल्स, तो पोडोसोल्स आपका चला जाएगा यहाँ। तो वैसे तो इन दो चॉइस से ही आंसर मिल जाता मुझे कि करेक्ट आंसर मेरा वन हो गया, लेकिन फिर भी और लोगों को हम मैच करेंगे और चॉइसेस को भी देखेंगे। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये आपको आसानी से याद भी रहता है। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है उनकी सॉइल जनरली रेड सॉइल होती है, जिसको लेटोसोल आप कहते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। ये पहले भी हमने बात की है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो कि आपकी सॉइल में जो बुकलेट में डायग्राम बना हुआ है जहाँ पे कंपैरिजन है डेसिडुअस सॉइल का और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सॉइल का, तो वहां पे लिखा हुआ है कि लेटोसोल होती है और रेड कलर की सॉइल होती है, और इसको और क्या कहते हैं, ऑक्सीसोल एंड अल्टीसोल भी इसी का नाम है। इसी को हम ऑक्सीसोल और अल्टीसोल भी कहते हैं। वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट विल गो विथ लेटोसोल रेड सॉइल, इसी को आप ऑक्सीसोल या अल्टीसोल भी कहते हैं। और जो आपके टेम्परेट ग्रासलैंड हैं वो जाएंगे चेरनोजेम पे, जिसको आप ब्लैक अर्थ या मोली सोल कहते हैं। जो चेरनोजेन है या ब्लैक अर्थ है, इसका एक और नाम होता है मोली सोल। ठीक है, तो ये जो आपके टेम्परेट ग्रासलैंड है ये जाएगी नंबर 4 पे। ठीक है, तो सी आपका 4 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका गाइस इसमें फर्स्ट आएगा। ये जो क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा भी रिपीट हो सकता है, तो बी केयरफुल अबाउट दिस। राइट, ये ध्यान रखना है जरूर इसमें, है ना, कि कहाँ से क्या चीजें टेक्निक जुड़ रही है, क्योंकि डिटेल सॉल्यूशन भी अभी इसका आएगा कुछ दिनों में। हमारा जो फाउंडेशन है वो इशू करेगा, लेकिन क्योंकि अभी एग्जाम किसी भी समय हो सकता है, तो पहले एक क्विक डिस्कशन इन क्वेश्चंस का होना बनता है। सॉरी। तो करेक्ट आंसर गाइज आपका यहाँ पे हो जाएगा 1, 96 इज 1। 96 करेक्ट ऑप्शन इज 1। क्लियर है सबको 96, किसी को कोई डाउट नहीं है। ये बुकलेट नंबर 2 में है, जहां पे आपका सॉइल है। बॉग वाली चीज वेटलैंड में पढ़ाई गई है। ठीक है, और सॉइल वाली चीज आपकी बुकलेट 2 में है, जहां पे कंपैरिजन है डेसिडुअस फॉरेस्ट का और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की सॉइल का, आपने अगर ध्यान दिया हो। ठीक है, आगे चले। चलिए जी, अगला क्वेश्चन और आसान। बार बार आपको पढ़ाया गया है, इतनी बार पढ़ाया गया अगला क्वेश्चन की, और रिपीटेड भी है। इसमें से 3 या 4 ऑप्शन, 3 ऑप्शन रिपीटेड है, एक ऑप्शन थोड़ा सा नया है। मैं आपकी जगह होता तो मैं तो सिंपली ये बोलता कि भाई जो आपका मेजरमेंट करने के लिए है, तो मुझे एक चीज तो ये याद रहती कि जो मेरा विंड स्पीड है वो हम एनीमोमीटर से मेजर करते हैं। तो मैं सीधा कुछ नहीं करता, मैं सीधा उठा के एनीमोमीटर को विंड स्पीड से मेजर करता। दैट एनीमोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट विच इज बेसिकली यूज टू मेजर द विंड स्पीड। तो डी जैसे ही 1 से मैच करता तो 2 ऑप्शन की यहाँ पे छुट्टी हो जाती। कौन कौन से ऑप्शन की छुट्टी होती, क्योंकि मैं 100% श्योर हूँ कि एनीमोमीटर से विंड स्पीड आप मेजर करते हैं। जब हम आपको विंड रोजेस पढ़ाते हैं तो हम बताते भी है कि एनीमोमीटर हाइट पे इतना है, और जब गॉसियन ब्लूम मॉडल पढ़ाया जाता है तो वहां भी बताया जाता है, फार्मूला भी है, एनीमोमीटर हाइट पे इतना है तो विंड स्पीड। ठीक है जी, तो एनीमोमीटर जो है विंड स्पीड का, एनीमोमीटर इज बेसिकली द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द विंड स्पीड। दूसरा, जब सोलर इंसोलेशन की बात करते हैं और इरेडियंस की बात करते हैं तो पायरोनोमीटर इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। ये भी पहले आ चुका है क्वेश्चन एक बार, पायरोनोमीटर। तो बी जाएगा आपका 4 पे। तो जैसे ही, मेरे हिसाब से तो ये आंसर यही सॉल्व हो गया, लेकिन फिर भी आपको रेस्ट ऑफ द नॉलेज भी पता होनी चाहिए। यू नेवर नो किस फॉर्म में क्वेश्चन दोबारा आ जाए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा गाइस 3rd। ठीक है, आगे की चीजें भी इसमें थोड़ी सी हम कर लेते हैं। करेक्ट आंसर तो यहाँ पे 3rd हो गया। ठीक है, उसके बाद जो रेनफॉल है, रेनफॉल जो मेजर करते हैं हम रेन गॉज से मेजर करते हैं, और इसके बहुत सारे तरह तरह के वर्जन्स हैं और नाम आते हैं। तो रेनफॉल जो मेजर करने के लिए आप यूज करते हो, तो पहली बात तो इस इंस्ट्रूमेंट को रेन गॉज भी कहते हैं। ठीक है, रेन गॉज एक उसका नाम होता है। उसके अलावा हम इसको ऊडोमीटर भी कहते हैं, ऊडोमीटर। ठीक है, ऊडोमीटर भी इसी का नाम है। इसके अलावा हम इसको पल्वियोमीटर भी कहते हैं, पल्वियोमीटर भी इसी का नाम है। ठीक है ना। उसके अलावा ओम्ब्रोमीटर भी होता है एक रेनफॉल के लिए। ठीक है, एक नाम जो यहाँ दिया हुआ हाइटोमीटर। ठीक है, हाइटोमीटर, ये भी रेनफॉल के लिए ही है। तो सारे ये ऑलमोस्ट सेम ही नाम है। तो रेनफॉल जो है आपका हाइटोमीटर पे जाएगा।
ठीक है, C विल गो टू 2। और ह्यूमिडिटी का आपको पता है, हाइग्रोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी के लिए आपका हाइग्रोमीटर होता है गाइस। तो ए आपका थर्ड पे चला जाएगा। तो करेक्ट आंसर मेरे हिसाब से यहाँ 110% थर्ड है करेक्ट आंसर। जब एनटीए की देगा आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, आंसर थर्ड ही निकल के आएगा। ह्यूमिडिटी इज बीइंग मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ हाइग्रोमीटर, राइट। इरेडियंस को हम पायरोनोमीटर से मेजर करते हैं। और सी आपका रेनफॉल जो मैंने बताया, हाइटोमीटर बोलो, ऊडोमीटर बोलो, पल्वोमीटर बोलो, एम्ब्रोमीटर बोलो, एक ही बात है। और विंड आपकी एनीमोमीटर से मेजर होती है। तो डी वन हो गया। आई होप किसी को कोई यहाँ पे इशू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 97 में करेक्ट आंसर इज थर्ड। एनीवन हैविंग एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर 97? क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट है 97 में? हमारे होमवर्क के हिसाब से 110% इसका आंसर जो है थर्ड ही होगा, क्योंकि हम प्रॉपर होमवर्क करके बैठते हैं हम लोग। हम क्वालिटी में बिलीव करने वाले ऑर्गेनाइजेशन है, हम ऐसे नहीं हवा में नहीं कुछ भी। हाँ, दो we are acceptable to changes if NTA have some argument, we will cross challenge that question to the agency, अगर एजेंसी देती है कि, बट यू नेवर नो कब देगी। पर ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, सो द डिस्कशन इज वैलिड। ठीक है, इनको डिस्कस करके आपका वैल्यू एडिशन होगा क्वेश्चन में, और आपको और ईज होगी जो अपकमिंग पेपर आएगा उसको डील करने में। ठीक है जी, आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, ये क्वेश्चन भी बड़ा इजी क्वेश्चन है, बड़ा आसान क्वेश्चन था, इजीली आप इसको डील कर सकते थे। अली सर के एटमॉस्फेयर डायनेमिक्स के प्रोग्राम में ये पढ़ाया गया है, 10 से ज्यादा बार कम से कम कोरियोलिस फोर्स का क्वेश्चन आया हुआ है। मैं सिंपल सा यहाँ पे एक फार्मूला लिखूंगा और आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा किस पे ये प्रोपोर्शनल है किस पे नहीं। तो जब आप जियोस्ट्रॉपिक बैलेंस की इक्वेशन लिखते हैं, जियोस्ट्रॉपिक पे दो क्वेश्चन आए हैं इस बार। ठीक है, तो जब आप जियोस्ट्रॉपिक बैलेंस पे क्वेश्चन लिखते हैं, तो वहां पे जो आपकी प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होती है, जिसको आप लिखते हैं -1/रो dp बाय dx। ठीक है, ये आप लिखते हैं वहां पे, या डेल p बाय डेल एक्स लिखते हैं, चेंज इन प्रेशर विद डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू जो आपकी कोरियोलिस फोर्स है। ठीक है, दैट इज 2v ओमेगा sin फाइव। ये लिखते हैं, सब सबको याद आ रहा होगा कि हाँ लिखे थे सर, और क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल इस पे आया है sin फाइव। और फाइव वहां पे होता है आपका साइन एंगल ऑफ द लैटिट्यूड, sin फाइव मतलब साइन एंगल ऑफ द लैटिट्यूड। तो ये वाला सेक्शन जो है वो कोरियोलिस फोर्स का सेक्शन है गाइस, कोरियोलिस फोर्स का सेक्शन है। उधर जो है वो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स का सेक्शन है। तो कोरियोलिस फोर्स में आप देख रहे हैं वी पे डिपेंडेंट है। तो जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है मूविंग बॉडी की उस पे डिपेंडेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अगर मैं कहूँ तो, क्योंकि यही तो कोरियोलिस फोर्स है। तो सी एफ क्या हो जाएगी, 2v ओमेगा sin फाइव। तो कोरियोलिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू sin फाइव। एक तो एंगल पे डिपेंडेंट है, तो साइन ऑफ द लैटिट्यूड एंगल आ गया, और दूसरा v के प्रोपोर्शनल है, v के प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली। तो वेलोसिटी आ गई आपकी मूविंग बॉडी की। ठीक है, डेंसिटी के इनवर्स में है, डायरेक्ट में नहीं है अगर आप देखें तो। ठीक है, स्पेसिंग आइसोबार के भी जो है इनवर्स में जाएगा, राइट। और मास ऑफ द मूविंग बॉडी की यहाँ पे बात नहीं हो रही है ना। तो इसका भी कोई कोरिलेशन नहीं है, पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉडी पे तो है, और साइन ऑफ द लैटिट्यूड पे है। तो ये बात तो पक्की हुई कि ये जरूर रहेगा कोरियोलिस फोर्स की डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी में, साइन ऑफ द लैटिट्यूड। और ये बहुत बार स्टेट पीसीएस में, गेट सिविल में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे 98 का आपका हो जाएगा 2 गाइस, बी एंड ई ओनली। और अच्छा क्वेश्चन है कोरियोलिस जियोस्ट्रॉपिक विंड पे। एक क्वेश्चन और आया हुआ है, अभी हम डिस्कस करेंगे आगे। तो दो क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट आए हैं, और टीचर ने जान के दो के भी इनफैक्ट तीन आए हैं। अगर आप देखोगे तो बे बैलेट्स लॉ भी पूछा गया है एक जगह पे। तो तीन क्वेश्चन डायरेक्टली सीधे सीधे आए हैं, तीनों पहले आ चुके हैं, तीनों बुकलेट से है, राइट। तो करेक्ट आंसर आपका 98 क्वेश्चन का हो जाएगा गाइस 2। करेक्ट आंसर इज 2। क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? बी एंड ई ओनली, करेक्ट आंसर इज 2, बी एंड ई ओनली।
एनीवन हैविंग एनी डाउट? यहाँ पे किसी को कोई डाउट हो तो दे कैन रेज द वैलिड पॉइंट और हम उसको डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को ही इसका रियल बेनिफिट लेना है। क्लियर है सबको? 98। ज्यादा क्वेश्चन अब बचे नहीं है, 50 के आसपास क्वेश्चन सब्जेक्ट में बचे हैं। पेपर 1 आपका डिस्कस हो चुका है। क्लाउड पे भी होपफुली आज आपके ये गूगल क्लासरूम में दिखेगा आपको, राइट, विद इन सीक्वेंस, क्योंकि सब बच्चों को इजीली एक्सेसिबल हो जाएगा वहां से। चलिए जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 99। ये डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट हुआ है दिसंबर 2023 से। एटलीस्ट दो ऑप्शंस तो मैं देख पा रहा हूं जो डायरेक्ट रिपीट हुए हैं, मिस्ट्रल और सांता एना। अगर आपको याद आ रहा हो, मिस्ट्रल और सांता एना मैंने वहां पे भी कराया था जब डिस्कशन है। रिकॉर्ड्स में भी आपको दिखेगा, एक क्वेश्चन था पूरा इसके ऊपर। तो ये एक मतलब जिसे कहते हैं ना, टिपिकल क्वेश्चन बन गया है, जो ईयर बाय ईयर आ रहा है, ठीक है, टाइम बाय टाइम आ रहा है। तो हमें इसको करना चाहिए अच्छे से एकदम, ठीक है। देखिए, तो अब देखते हैं इसको 99 क्वेश्चन को। कुछ है तो है नहीं इसके अंदर, वही सिंपल डेफिनेशन है जहां हमें मैच करना है। तो लिस्ट ए और लिस्ट बी को मैच करना है। लिस्ट ए में आपको लोकल विंड्स प्रोवाइडेड है, लिस्ट 2 में आपको डिटेल्स ऑफ द प्लेस ऑफ अकरेंस की कहाँ पे होती है ये चीज, वो मेंशन है गाइस। तो वन बाय वन हम चलते हैं, और अगर आपको कॉन्सेप्ट याद आ रहा हो और सॉल्यूशंस आपने ठीक से पढ़ा था, तो मेरे हिसाब से किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए थी। तो जो इसमें मिस्ट्रल है गाइस, मिस्ट्रल अगर आपको याद आ रहा हो, राइट, तो मिस्ट्रल जो है आपकी, ये थर्ड ऑप्शन जो आपका दिया हुआ है, मिस्ट्रल इज बेसिकली आपका cold wind blow into the western Mediterranean basin from higher elevation to the north। ये एक्चुअली में मिस्ट्रल की डेफिनेशन है, राइट। तो मिस्ट्रल इज बेसिकली कोल्ड विंड ब्लो इनटू द वेस्टर्न मेडिटेरियन बेसिन फ्रॉम हायर एलिवेशन टू द नॉर्थ, उसको मिस्ट्रल बोलते हैं। और ये आपके 2023 दिसंबर के सॉल्यूशन में भी मेंशन था, वेयर वी गिव इट। जब आप बात करते हैं फोहिन की, राइट, तो बेसिकली जो फोहिन है आपका, फोहिन क्या है? फोहिन इज बेसिकली वार्म एंड ड्राई विंड ऑन द नॉर्दर्न साइड ऑफ एल्प्स इन स्विट्जरलैंड, राइट, जो एल्प्स हैं आपके वहां पे। तो वार्म एंड ड्राई विंड ऑन द नॉर्दर्न साइड ऑफ एल्प्स इन स्विट्जरलैंड। तो फोहिन का जो जिक्र आता है वो वहां से रिलेटेड है, फोहिन। और जब आप बात करते हैं सांता एना, राइट, तो सांता एना तो यूएस में है, कैलिफोर्निया का विंड पैटर्न है एक तरह का। तो सांता एना विल गो टू वार्म एंड ड्राई विंड अकर्स इन यूएसए। तो सांता एना बेसिकली वार्म एंड ड्राई विंड अकर्स इन यूएसए। एंड देन वी हैव डी, विच इज बोरा, राइट। तो बोरा जो है आपका, वो कोल्ड एंड ड्राई विंड नियर एड्रियाटिक सी है, ठीक है। एड्रियाटिक सी के आसपास का ये रीजन है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, राइट। और ये वो वाले एरिया है, जैसे जो एड्रियाटिक सी के रीजन है, ये वो वाले एरिया है जिसमें इटली, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, जब हम डिटेल सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे तो वहां पे आपको मिलेगी ये चीजें। जो बुरा है वो इन रीजन से बिलोंग करता है, जो एड्रियाटिक सी का रीजन है, जिसमें आपका इटली, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, ये आ जाएंगे। तो कोल्ड एंड ड्राई विंड नियर एड्रियाटिक सी। तो अगर आप इन ऑप्शंस को फॉलो करें, तो एज पर आवर रिसर्च द करेक्ट आंसर शुड बी फोर्थ। तो 99 में आपको करेक्ट आंसर गाइज हो जाएगा फोर्थ। फोर्थ इज द करेक्ट चॉइस फॉर 99। क्या सबको क्लियर है? जल्दी बताइए। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 99। किसी को कोई डाउट है तो वो रेज कर सकता है, वी आर हैप्पी टू डिस्कस, कि इसीलिए एक्टिविटी है आपकी। 99 इज बेसिकली फोर्थ। एनीवन हैविंग एनी डाउट? क्लियर? चलिए, अब हम आते हैं 100th क्वेश्चन पे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, वेस्ट से रेज किया गया और बहुत इजी क्वेश्चन था ये। अब कुछ बच्चों ने इसको शायद ध्यान से पढ़ा नहीं, राइट, या क्या रहा, इसको मैं नहीं कह सकता। कुछ तो इशू रहा वहां पे जो उसको डील नहीं कर पाए कुछ बच्चे, शायद। तो जब आप इस 100 क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन दिखने में बड़ा सिंपल लगेगा, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल मेथड ऑफ रिसाइकलिंग प्लास्टिक। अब देखिए,
जब प्लास्टिक को आप रिसाइकल करते हैं ना, तो कई तरह के मेथड होते हैं। केमिकल मेथड होते हैं, एनर्जी ऑब्टेनिंग मेथड होते हैं, मैकेनिकल मेथड होते हैं, फिजिकल मेथड होते हैं। ठीक है। और उसकी बकायदा कैटेगराइजेशन है। जब हम आपको प्रोवाइड करेंगे चीजें तो आपको दिखेगा कि अलग अलग कैटेगरी के टाइप्स हैं। राइट। तो यहाँ पे जब आप बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल मेथड ऑफ रिसाइकलिंग द प्लास्टिक, तो फिजिकल मेथड कहने का मतलब है कि ना तो हम एनर्जी ऑब्टेन करेंगे, ना हम कोई केमिकल ट्रीटमेंट देंगे। राइट। और उसकी क्वालिटी भी मेंटेन रहेगी। तो देखो जो लास्ट ऑप्शन दिए है यहाँ पे, बर्निंग द प्लास्टिक टू ऑब्टेन द एनर्जी, ये तो हो ही नहीं सकता। ये तो एक तरह का पायरोलिसिस हो गया, या आपको आप उसको जला के प्लास्टिक से एनर्जी ऑब्टेन कर लेंगे, तो दिस कुड नॉट बी अ वैलिड ऑप्शन। राइट। रिसाइकलिंग का ये पार्ट है नहीं, ये फिजिकल मेथड में पार्ट नहीं है एटलीस्ट। राइट। ट्रांसफॉर्म द प्लास्टिक इनटू द लो क्वालिटी, ये भी हमारी क्वालिटी का पार्ट नहीं है। लो क्वालिटी में हम ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि उनको डिग्रेड करना फिर या रिसाइकल करना और दिक्कत का काम बन जाता है। इसके अलावा डीपॉलीमराइजेशन जो है एक तरह का केमिकल मेथड होता है, जहां पे आप हाई पॉलीमर को लो पॉलीमर में तोड़ लेते हैं, तो ये केमिकल मेथड में आता है। ये भी नहीं है। जो पहला ऑप्शन आपका गाइज यहाँ पे है ना, रिप्रोसेस द प्लास्टिक टू प्रोड्यूस न्यू क्लीन प्रोडक्ट, तो यही आपका फिजिकल मेथड में आएगा। बाकी सब केमिकल मैकेनिकल मेथड नीचे दिए हुए हैं। जब हम डिटेल सोल्यूशन सामने लाएंगे आपके, तो वहां पे आपको मिलेगा। तो रिप्रोसेस द प्लास्टिक टू प्रोड्यूस द न्यू क्लीन प्रोडक्ट, तो करेक्ट आंसर इज 100। द करेक्ट आंसर इज 1। फिजिकल मेथड में पहला ही ऑप्शन आपका राइट बैठता है, जिसमें आप प्लास्टिक को रिप्रोसेस करते हैं विदाउट एनी केमिकल इंटरवेंशन एंड मैकेनिकल इंटरवेंशन। एनीवन हैविंग एनी डाउट टिल हेयर? किसी को कोई डाउट है? 100 द करेक्ट ऑप्शन इज 1। एनीवन हैविंग एनी डाउट 100 में? जल्दी बताइए। चलिए जी आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 101 को डील करते हैं फटाफट से। ठीक है। अच्छे क्वेश्चंस हैं कुछ कुछ इसमें काफी, और वैलिड आर्गुमेंट बनता है उनको करने का बिफोर द नेक्स्ट एग्जाम हैपन एज अर्ली एज पॉसिबल, सो दैट यू पीपल कैन विड्रॉ द मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम इंस्टीट्यूट साइड। राइट। और अभी शायद आपके क्लाउड में ये अवेलेबल हो जाएगा सारा। राइट। बट क्वेश्चन नंबर 101 को भी हम देखते हैं फटाफट से यहाँ पे। क्या कहता है 101? रेड मड is a particular type of waste connected with the production of, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और रिसेंटली 2016 में इसमें एक अमेंडमेंट भी आई थी, जिसपे कहा गया था हाई वॉल्यूम एंड लो इफेक्ट वेस्ट। ठीक है, या हाई वॉल्यूम और लो इफ्लुएंट वेस्ट इन वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग एंड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 2016, जो सीपीसीबी ने इशू किए थे। तो यहाँ पे जो ये रेड मड है, अगर आप देखेंगे तो रेड मड एक पर्टिकुलर टाइप का जो वेस्ट है। ये बेसिकली जब आप एल्यूमिना Al2O3.24H2O उसको जब आप प्रोसेस करते हो बॉक्साइट से, जो उसका और है, तब आपका ये निकलता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है गाइस आपका 2 होने वाला है। एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट, जब इसकी मेटलर्जी होती है, आप जिसको आप क्या कहते हैं, बेयर्स प्रोसेस, या आपने 11 12 में पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, दिस इज कॉल्ड एज बेयर्स प्रोसेस। ठीक है, बेयर्स प्रोसेस कहते हैं इसकी मेटलर्जी को, बड़ा फेमस प्रोसेस है बेयर्स प्रोसेस। ठीक है। बॉक्साइट रेजिड्यू यहाँ पे मिलता है आपको, जो रेड मड है बॉक्साइट रेजिड्यू। ठीक है, बॉक्साइट रेजिड्यू। और ये आपका एल्यूमिनियम Al2O3.24, इस तरह से ये रहता है। इसकी मेटलर्जी जब की जाती है तो आपको रेड मड वहां पे मिलती है एज अ बाय प्रोडक्ट। राइट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका 2 होने वाला है, एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट। किसी को कोई डाउट है गाइस इसमें? 101 द करेक्ट आंसर इज बेसिकली 2। करेक्ट आंसर इज 2 फॉर 101, एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट। किसी को कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 101 में? जल्दी बताइए। एनीवन हैविंग एनी डाउट? ये नीट और जेई में भी कई बार क्वेश्चन आया है 102, ओ सॉरी 101। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 102 को देखेंगे। और ये क्वेश्चन अगर मैं ये कहूँ कि रिपीट हुआ है डायरेक्टली आपके क्लास से, क्वेश्चन है जहाँ पे टीओआर की बात आपने की है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस, तो ये आपको पढ़ाया भी गया है। बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, कई बार आया है, अदर एग्जाम्स में भी आया है पीएचडी के। तो देखिए ध्यान से क्या कहता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपको कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स
जस्ट a minute. क्वेश्चन में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स रेफर्स टू द प्रोसेस डिटरमाइन द डिटेल एंड कॉम्प्रिहेंसिव टर्म्स ऑफ रेफरेंस टॉर जिसको आप कहते हैं एड्रेसिंग ऑल रिलेवेंट एनवायरमेंटल कंसर्न फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एन इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट जो EIS बनती है जिसको इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट भी कहते हैं रिस्पेक्ट टू द प्रोजेक्ट एक्टिविटी और इन्वायरमेंटल क्लियरेंस इज सॉट। तो कौन सा स्टेप होता है? तो आपको पता है सबसे पहले स्क्रीनिंग होती है फिर स्कोपिंग होती है। तो ये स्कोपिंग है, यहाँ पे TOR की बात की जाती है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस की बात की जाती है स्कोपिंग के अंदर में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे 102 का गाइस आपका हो जाएगा स्कोपिंग। और ये आपको क्लास में भी पढ़ाया गया होगा कि टॉर जो एस्टेब्लिशमेंट होती है टर्म्स ऑफ रेफरेंस, बार बार ये क्वेश्चन आया है, बहुत बार आया है। तो टॉर का जो इंट्रोडक्शन है वो आपका रहता है स्कोपिंग में। तो करेक्ट आंसर फॉर 102 इज स्कोपिंग। इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरी वन? एनी वन हैविंग एनी डाउट इन 102 क्वेश्चन? जल्दी बताइए, किसी को कोई डाउट है? चलिए आगे चलते हैं। स्कोपिंग इज द करेक्ट आंसर। 103rd क्वेश्चन की बात करते हैं। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर ये मुझे नहीं पता लोगों ने, जिसने भी अगर गलत किया तो क्यों किया, दैट इज मतलब आउट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग, जो मुझे नहीं समझ में आया कि क्यों ऐसा किया, कि क्या लॉजिक रहा उसके पीछे। बट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जब मैम ने आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाया तो इस तरह के आपको क्वेश्चन भी कराए गए हैं कि जो आप कोरिलेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं आर, उसको कैलकुलेट करने का जो स्टाइल है वो क्या है। और बस इसमें यही पूछा था कि बच्चे को ये अप्लाई करना आता है कि नहीं आता है, whether he is familiar that how to calculate the correlation coefficient and how to not, right? तो यहाँ पे अगर आप देखें कि हाउ टू कैलकुलेट द कोरिलेशन कोफिशिएंट, तो क्वेश्चन में यही बात पूछी गई है कि हाउ टू कैलकुलेट द कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो कहता है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एक्स वाई अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स टू गेट द वैल्यू ऑफ पी एक्स वाई। मतलब हमें इसके लिए कोरिलेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट कैसे करें अगर करना है तो मान लीजिए दो डाटा सेट आपको दिए गए हैं, एक एक्स दिया है एक वाई दिया है, दो कॉलम आपको दे दिए। तो ऐसे में सबसे पहले आप क्या करते हैं? सबसे पहले अगर मैं सीक्वेंस में लगाऊं तो सबसे पहले मैं एक्स लिखूंगा, फिर मैं वाई लिखूंगा, और पहले मैं एक्स का स्क्वायर करूंगा और फिर मैं वाई का स्क्वायर करूंगा, अगर आपको याद आ रहा हो तो। राइट, है ना? तो जो मेरा एक्स एंड वाई है उसको मैं लूंगा वहां पे। राइट, तो सबसे पहले मैंने बी चूज कर लिया, स्क्वायर ऑफ एक्स देन स्क्वायर ऑफ वाई। ठीक है, ये मैंने कर लिया जिससे कि कोई भी अगर आपकी इस तरह की वैल्यू है तो वो सिग्निफिकेंटली आएगी निकल के। देन उसके बाद बी के बाद तो डी आ गया गाइस। ठीक है, तो एक ऑप्शन यहाँ पे फोर्थ हट जाएगा उस समय पे। फिर उसके बाद बारी आती है आपकी, आप प्रोडक्ट लेते हैं एक्स और वाई का, टेक द प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई थर्ड स्टेज पे। तो बी डी एंड ए, तो जैसे ही यहाँ पे थर्ड स्टेज पे आपने प्रोडक्ट लेने की बात की तो ये तो चले गए सारे, सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा। तो आप प्रोडक्ट लेते हैं और बहुत सारे इसके एग्जाम्पल भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। कई लोगों ने इसको करके भी दिखाया और अवेलेबल भी है, और SP गुप्ता में भी अवेलेबल है। ठीक है, और डेनियल जैकब की, डेनियल जो किताब है आपकी उसमें भी अवेलेबल है, स्टैटिस्टिक्स की संचेती में भी अवेलेबल है। ठीक है, सारी जगह पे है, और इवन जब कराए गए हैं तो उस प्रोटोकॉल में भी अवेलेबिलिटी है। और उसके बाद आपकी आती है बारी टू कैलकुलेट द मीन ऑफ एक्स एंड मीन ऑफ वाई, दोनों का उसमें आप फिर मीन कैलकुलेट कर लेते हैं। एंड देन फाइनली आप ई स्टेप की तरफ जाते हैं, वेयर यू कैलकुलेट द कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई। ई उसके बाद आता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे जो हमारी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से है, एज पर आवर इन्वेस्टिगेशन, 103 का आंसर फर्स्ट होना चाहिए गाइस। ठीक है, और ये हम 99.9% ऐसे आंसर है कि जो यही होने चाहिए, इसके अलावा नहीं हो सकते। ठीक है, बट स्टिल वी आर एक्सेप्टेबल टू एनी चेंज गिवन बाय NTA, बट मुश्किल ही वेरिएशन आपको मिलेगा। ठीक है, वेरिएशन मुश्किल ही मिलेगा। मुझे नहीं लगता है कि कुछ ज्यादा वेरिएशन होने वाला है, क्योंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। राइट, एनीवन हैविंग एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर
103, जल्दी बताइए, किसी को कोई डाउट हो इसमें 103 में, क्योंकि आप लोगों ने भी स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है। इफ यू कैन सजेस्ट एनी बेटर ऑप्शन तो वी विल श्योरली गोइंग टू टेक दैट। बट ये प्रोटोकॉल पूरा एस्टेब्लिश है, मेंशन्ड है। अगला क्वेश्चन जो है वो पहली बार आया और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मतलब मुझे पर्सनली फीलिंग ये सबसे अच्छा क्वेश्चन लगा इस बार के एग्जाम में, 104, जिसने रिसर्च को माइंड में रखते हुए क्वेश्चन का फॉर्मेशन किया। हालांकि इसमें से हाफ पार्ट जो है वो रिपीटेड था, वी एग्री ओवर दैट। आधा पार्ट इस क्वेश्चन में रिपीटेड था, जो शुरू के ऑप्शन थे ए और बी, वो रिपीटेड थे, लेकिन उससे कुछ बहुत ज्यादा हेल्प नहीं मिलने वाली थी किसी को भी, फॉर श्योर। ठीक है, उससे कोई बहुत ज्यादा हेल्प नहीं मिलने वाली थी। तो बिफोर आई स्टार्ट डिस्कसिंग तो क्वेश्चन, कुछ बात चीजों पे बात करते हैं, क्योंकि शायद ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा, इसके बाद हम कल ही डिस्कस करेंगे। ज्यादा इंटेंसिव नहीं रखना है, क्योंकि हमें आपको अच्छे से कंसेप्चुअली डाइजेस्ट करानी है चीजें, राइट। तो हम इसको बहुत ओवरलोडेड और ओवर इंटेंसिव नहीं रखना चाहते हैं, राइट। तो ये क्वेश्चन में बात करने से पहले हम एक बात ये कर ले कि जो हमने पढ़ा पढ़ाया, मैं वो चीजें आपको बताना चाहता हूँ कि एक तो आपको ये बात याद आ रही होगी कि जब भी हम आर्सेनिक की टॉक्सिसिटी की बात करते हैं, हमने वाटर में पढ़ा था कि आर्सेनिक जो होता है उसकी दो फॉर्म होती है। एक होती है आर्सेनिक 3+, जिसको हम आर्सीनाइट कहते हैं, सो दैट आप कनेक्ट बढ़िया कर सको इस क्वेश्चन को। आर्सेनाइट, और ये टॉक्सिक होता है, हाईली टॉक्सिक होता है, ठीक है, मैंने बताया अभी तक। और दूसरा होता है आपका आर्सेनिक 5+। आर्सेनिक 5+, आर्सेनिक 5+ को आप बोलते हैं आर्सीनेट, ठीक है जी, आर्सीनेट बोलते हैं। और ये कंपैरेटिवली नॉन टॉक्सिक होता है एज कंपेयर टू आर्सेनिक 3+ के। ये दो बातें हमने पढ़ी थी, एक तो ये बात हुई। दूसरी, इस क्वेश्चन में एक चीज दी हुई है LD50। तो ये भी मैं बता दूं LD50 क्या होता है। LD50 आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, दिस इज लीथल डोज 50, और बकायदा एक रिसर्च पेपर से बनाया गया ये क्वेश्चन। अब मैं रिसर्च पेपर शेयर कर सकता हूँ पबमेड में, फार्माकोलॉजी का एक बहुत अच्छा पेपर है जिस पे स्टडी हुई है, राइट। पेपर लोग मेरे से लेके पढ़ सकते हैं जिसको इंटरेस्ट हो। मैंने पूरा पेपर वो पढ़ा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज भी लोगों का रिसर्च बेस क्वेश्चन बनाने में विश्वास है। जनरली एनटीए ऐसा नहीं करता है, ठीक है। एनटीए के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इधर उधर से पिक्ड एंड ड्रॉप होते हैं। तो लीथल डोज 50 अगर आपको याद आ रहा हो, तो हमने आपको बताया हुआ है कि लीथल डोज 50 इज द कंसंट्रेशन ऑफ एनी केमिकल सब्सटेंस विच विल कॉज द डेथ ऑफ द 50% ऑफ एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म। मान लीजिए आपने 100 चूहे लिए या 100 रैबिट, 100 रैट लिए, और उनपे आप कोई ड्रग टेस्ट कर रहे हैं। तो कितनी कंसंट्रेशन में आपने या कितनी डोज में वो ड्रग दी कि 100 में से 50 चूहों की डेथ हो गई, ठीक है। और ये पिछली से पिछली बार ये लीथल डोज वाला क्वेश्चन एग्जाम में था। हम भी जब टॉक्सिकोलॉजी पढ़ा रहे थे, वाटर पढ़ा रहे थे, तो हमने ये पढ़ाया था। दो चीजें तो ये हुई। तो ये दो चीज थी, और एक छोटी सी चीज और थी इसमें, जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना था, जो मैंने आपको सिखाया भी था, और ये क्वेश्चन आया भी हुआ है इस बेसिस पे। जो यहाँ पे एक कंपाउंड ये लिखा आपने, ये तो दोनों बातें हो गई। आई होप ये सबको क्लियर भी हो गई होगी अब तक कि आर्सेनिक 3+ ज्यादा टॉक्सिक होता है। अब अगर मैं घूम के आऊं, तो मुझे ये नहीं पता चल रहा था क्वेश्चन के अंदर कि भाई हाउ टू अप्रोच, ठीक है, हाउ टू अप्रोच, राइट। तो जो तो वन बाय वन इन ऑप्शंस को हम बहुत अच्छे से लेंगे। जैसे हमने पहला ऑप्शन लिया कि ये जो दिया यहाँ पे आर्सीनस एसिड, नाम भी याद रखना, आर्सीनस एसिड। तो जब आर्सीनस एसिड आप बोलते हो गाइस, और आप बोलते हो H3ASO3, तो लेट अस सपोज, मैंने मानता हूं कि आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन स्टेट एक्स है, तो हाइड्रोजन हो जाएगा +3 × 1, प्लस एक्स, ऑक्सीजन होता है -2, तो ये हो जाएगा +3 × -2 शुड बी इक्वल टू 0, एज पर जो आप 11 12 में पढ़ते थे। सम चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल शुड बी 0 अगर वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो जब आप यहां से इस ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैलकुलेट करते हैं, 3 + x - 6,
शुड बी इक्वल 0, तो x आपका निकल के आएगा +3। मतलब इस कंपाउंड में आर्सेनिक 3+ की फॉर्म में है, तो ये तो हाईली टॉक्सिक होता है। ठीक है, ये तो हाईली टॉक्सिक होता है, ये सबको बात क्लियर है, यहां तक क्लियर है सबको? ये आपने पढ़ा भी है और यह एक बार क्वेश्चन आ भी चुका है। दूसरा इसमें आया आर्सेनिक एसिड, और ये आपका बुकलेट में भी है, हमने पढ़ाया भी है। दूसरा कंपाउंड इन्होंने लिया आर्सेनिक एसिड, जो H3AsO4 लिया आपने। तो फिर से वही टेक्निक हमने लगाई, हमने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने की कोशिश की। H3AsO4, तो हाइड्रोजन आपके 3 है, इसका +1। आर्सेनिक को मैंने x मान लिया, ऑक्सीजन मेरे 4 है, -2, शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, फिर जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 3 + x - 8 = 0, x आ जाएगा आपका +5। मतलब कि ये जो दूसरा कंपाउंड दिया हुआ है आर्सेनिक एसिड, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, विच इज नॉन टॉक्सिक। ये सारी बातें आपको कनेक्ट करनी पड़ेगी, नॉन टॉक्सिक। चलो अच्छी बात है, हमने मान लिया इस बात को। फिर यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया कि इन आर्सेनिक स्पीशीज का मिथाइलेशन किया गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसमें 3 मिथाइल ग्रुप ऐड किए गए, जिसको आर्सिनोकोलिन कहा गया। यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप ऐड किए गए, जिसको डाइमिथाइल आर्सेनिक एसिड होता है। ये आर्सोनिक लिख दिया, ये एनटी की गलती है, डाइमिथाइल आर्सेनिक एसिड होता है, ये मैं आपको बता दूं, आर्सोनिक नहीं होता। ठीक है, आर्सेनिक होता है, डाइमिथाइल आर्सेनिक एसिड। बट एनीवेज, अब जब जो गलती है सो गलती है, उसमें आप कुछ नहीं कह सकते। ठीक है ना, उसकी कोई इशू है नहीं। ठीक है, उसमें कोई, जैसे हम कहें कि उसमें कोई लड़ने झगड़ने की बात नहीं है, तो पेपर आपके सामने। और तीसरे वाले में आप देख सकते हैं कि ये आर्सिनो बीटेन, जहां पे 3 मॉलिक्यूल अटैच हुए और साथ में एक एसीटेट जो है आयन अटैच हुआ, CH3COH। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है कि जितना ज्यादा आप मिथाइल ग्रुप अटैच करेंगे, उतनी ही आपकी टॉक्सिसिटी कम होती जाएगी, ये ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये इसलिए है कि जब मिथाइलेशन होता है किसी मॉलिक्यूल का, तो वो उसको न्यूट्रलाइज करता है। तो ये भी बात हमें समझ में आ गई कि मोर द मिथाइलेशन, ये आपने मरकरी में भी पढ़ा होगा कि जो ट्राई मिथाइल मरकरी होता है वो आपका ज्यादा वाटर सॉल्युबल होता है, जो डाई मिथाइल मरकरी होता है उससे कम, और मोनोमिथाइल मरकरी तो टॉक्सिक होता है। तो यही है। तो जो आपका मिथाइल ग्रुप है, अगर वो ज्यादा होगा तो टॉक्सिसिटी कम होगी। ये भी एक दिमाग में आपको बात ध्यान रखनी है। ठीक है, अब मैं एक छोटा सा लॉजिक आपको और बताता हूं। ये भी बात ध्यान रखिए कि अगर मान लीजिए कोई बहुत ज्यादा हाईली पॉइजनस है, तो उसकी तो 2 ड्रॉप से भी डेथ हो जाएगी। तो जिसकी टॉक्सिसिटी जितनी ज्यादा होती है, उसकी डोज उतनी ही कम लगती है किसी को मारने में। ये बात से सब एग्री करते हैं कि जिसकी टॉक्सिसिटी जितनी ज्यादा होती है, अगर हाई टॉक्सिसिटी है किसी कंपाउंड की, तो उसकी डोज आपको बहुत कम देनी पड़ेगी। जैसे कहते हैं ना कि साइनाइड का सिर्फ एक ड्रॉप ही रख लो जीभ पे, तो जीवन लीला खत्म। ठीक है, या थोड़े से ही उसकी डेथ हो सकती है। तो ये भी आपको बात समझनी पड़ेगी कि जिसका LD50 ज्यादा होगा, उसकी टॉक्सिसिटी कम होगी, तभी तो ज्यादा देना पड़ेगा। और जिसकी टॉक्सिसिटी ज्यादा होगी, उसका LD50 बहुत कम होगा, क्योंकि टॉक्सिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू LD50। जिसकी LD50 बहुत ज्यादा है, उसकी टॉक्सिसिटी कम है, इसका मतलब तभी हमें ज्यादा देना पड़ रहा है। ठीक है, अगर हमारी टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा हो किसी पॉइजन की, तो हमें बहुत कम डोज देनी पड़ेगी। क्या ये बातें क्लियर है सबको? जल्दी बताओ। अब फाइनल क्लाइमेक्स आ रहा है इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का अब फाइनल क्लाइमेक्स आने वाला है, जल्दी बताइए। ठीक है, अब देखिए, अब हम इस पे फाइनली इस क्वेश्चन को फतेह करने वाले हैं, कैसे? लॉजिक के साथ। अब ये बात तो पक्की है कि अगर मैं इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड कर लूं, तो एक तो ये ऑप्शन होते हैं A एंड B, और ये 110% श्योर है कि इसमें से जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है ऑप्शन ए, वो टॉक्सिक है ज्यादा बी से। तो ये बात तो आप एग्री करेंगे कि जो मेरा आर्सिनस एसिड है, मैं लिख देता हूं सो दैट आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए, क्योंकि ये नया क्वेश्चन है मार्केट में। जो पहला है आर्सिनस एसिड,
जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, ये वाला A+3 है, ये ज्यादा टॉक्सिक होगा किससे? आर्सेनिक एसिड से, जिसमें +5 है। क्या इस बात से लोग एग्री करेंगे कि ए तो ज्यादा टॉक्सिक है डेफिनेटली बी से, कोई इसको चैलेंज नहीं कर सकता। तो यहां से ये प्रूव हुआ दैट ए इज मोर टॉक्सिक देन बी। अब रोल आना चालू हुआ मिथाइलेशन का। जब गाइस मिथाइलेशन का रोल आना चालू हुआ, तो हमने जब डाटा को कंपेयर किया, तो हमने ये पाया कि भाई, हमने उसमें ये पाया कि जो आपका डाइमिथाइल आर्सेनिक एसिड है, जो डी ऑप्शन आप दे रहे हैं, राइट, वो इससे कम होता है, क्योंकि उसमें मिथाइलेशन हो गया, और जितना मिथाइलेशन होगा उतनी टॉक्सिसिटी कम होगी, राइट। तो हमने क्या पाया कि ए और बी के बाद नंबर लगता है किसका? ए और बी के बाद आ जाता है क्या? डी, डाइमिथाइल आर्सोनिक एसिड, ठीक है, जिसको हम डीएमए कह रहे हैं, डाइमिथाइल आर्सोनिक एसिड, क्योंकि इसके अंदर दो मिथाइल है। और इसका प्रैक्टिकल डाटा है, पेपर आप मुझसे ले लीजिएगा, पढ़िएगा अच्छे से, अच्छा कॉन्सेप्ट है, सीखने लायक कॉन्सेप्ट है। तो ये डी ऑप्शन जो है, ये मेरा थर्ड पे पहुंच जाएगा, जिसको हमने डी कह दिया है, तो डी ऑप्शन भी डाल देते हैं। उसके बाद टॉक्सिसिटी आती है किसकी भाई? उसके बाद टॉक्सिसिटी आती है आर्सिनोकोलिन, जो ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, आर्सिनोकोलिन, आर्सिनोकोलिन। और लास्ट में आता है आपको आर्सिनोब्यूटेन। ये मैं डाटा के साथ आपको दे सकता हूँ, पूरा रिसर्च पेपर है, आर्सिनोब्यूटेन। और एक, मतलब मेरा डिस्कशन भी हुआ इस बात को लेके, देयर इज वन प्रोफेसर इन माय सर्कल, मैंने पेपर उनसे भेज के कंफर्म किया कि हाँ ये लॉजिक एकदम सही है। शी इज वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ वन इंस्टीट्यूट, पीएचडी इन फार्मेसी। तो आर्सिनोब्यूटेन ये आपका आखिरी में चला गया। तो जब मैंने ऑर्डर देखा, तो मुझे दिखा भाई कि टॉक्सिसिटी का ऑर्डर तो कुछ ऐसा बन रहा है, टॉक्सिसिटी का ऑर्डर तो कुछ ऐसा बन रहा है कि ए ज्यादा टॉक्सिक है बी से, और बी ज्यादा डेफिनेटली टॉक्सिक है डी से, क्योंकि मिथाइलेशन का इम्पैक्ट तो बाद में चालू हुआ। डी ज्यादा टॉक्सिक है सी से, और सी ज्यादा टॉक्सिक है ई से। लेकिन अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, क्योंकि टॉक्सिसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है LD50 के। तो जो LD50 का ऑर्डर होने वाला है, वो एग्जैक्टली इसका रिवर्स होने वाला है। तो LD50 का जो ऑर्डर होगा, वो एग्जैक्टली इसका उल्टा हो जाएगा। LD50 सबसे ज्यादा किसकी होगी? जिसकी टॉक्सिसिटी सबसे कम थी। तो ई की LD50 सबसे ज्यादा होने वाली है। उसके बाद किसकी होने वाली है? सी की। उसके बाद किसकी होने वाली है? डी की। उसके बाद किसकी होने वाली है? बी की। और ए का तो अगर थोड़ा सा ही दे दोगे तो इंसान मर जाएगा। तो ये किसका ऑर्डर है? LD50 का। क्वेश्चन पूछा था LD50 का ही ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है, ई की LD50 आपको सबसे ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि ई की टॉक्सिसिटी सबसे कम है। तो क्या ये क्वेश्चन सबको क्लियर है? और मैं इस क्वेश्चन को वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एग्जाम डिक्लेयर करता हूं। मतलब इससे ज्यादा लॉजिक, और ये नई चीज है एकदम, मतलब दिस हैव बीन इंट्रोड्यूस फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ लास्ट 15-20 ईयर, एक्सेप्ट जो शुरू के दो ऑप्शन है, उसके अलावा कहीं इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है मिलेगा आपको पुराने रिपीटेड क्वेश्चन में। तो इस तरह के रिसर्च बेस्ड नए क्वेश्चन नॉट एवरी वन कैन डील, राइट। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसमें गड़बड़ा गए, क्योंकि इसमें दो तीन कॉन्सेप्ट अच्छे कंबाइन हो रहे हैं, और ये रिसर्च पेपर से पिक किया गया क्वेश्चन है, डेफिनेटली नोबडी कैन डिनाई दैट। क्या ये क्वेश्चन सबको क्लियर है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका होने वाला है गाइस फोर्थ, कि आपको अरेंज करना है इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ LD50। तो फोर्थ ऑप्शन जो है, ई की LD50 वैल्यू सबसे ज्यादा आने वाली है। फोर्थ ऑप्शन विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। किसी को कोई डाउट है इसमें? जल्दी बताइए। कोई कॉन्सेप्ट इसमें आपको ना समझ में आया हो? क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एंड आई विश कि आप सभी इसको सीखें, ठीक है। और आने वाले समय में आपको ये दिख सकता है दोबारा, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, चाहे इंडिविजुअल में दिखे, चाहे राइट रॉन्ग स्टेटमेंट में दिखे, दोबारा दिख सकता
चलिए जी, विद दिस अगर एवरीथिंग इज क्लियर देन वी विल स्टॉप हियर फॉर टुडे, क्योंकि हम इसको स्लो प्रोसेस में करेंगे, राइट? नहीं, एंटायरली ये डिपेंड करेगा मिथाइल ग्रुप पे, क्योंकि मिथाइलेशन से ही आपकी टॉक्सिसिटी ड्रिवन होती है, राइट? मिथाइलेशन पे ये डिपेंड करेगा। ठीक है, आप ये बात जरूर कह सकते हैं कि जो आर्सिनो ब्यूटेन है वो सबसे कम टॉक्सिक इसलिए है क्योंकि वो इजीली वाटर सोलुबलाइज हो जाएगा, ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, सीओ माइनस है। उसके बाद जो दूसरे वाला है उसमें भी दो ऑक्सीजन है, ज्यादा सोलुबिलिटी रहेगी। हाँ, 3 CH3 है, लेकिन आप इस चीज को हाईलाइट करिए, हाईलाइट दिस थिंग, यहाँ पे दो ऑक्सीजन है विच कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि आपको फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन चाहिए होता है, राइट? हाँ, आज सब कुछ अपलोड हो जाएगा, वी विल बी डूइंग दैट। और यहाँ पे फिर जो मैंने आपको बताया कि अ, ये जो है आर्सिनोकोलिन इसके बाद आएगा, राइट? तो हमने बोला आपको कि जो डाइमिथाइल आर्सेन है वो ज्यादा टॉक्सिक है इसमें, राइट? एज कंपेयर टू आर्सिनोकोलिन, एज कंपेयर टू आर्सिनोब्यूटेन। तो आर्सिनोब्यूटेन का एज कंपेयर टू आर्सिनोकोलिन सबसे कम होने का रीजन यही है कि उसके बाद दो ऑक्सीजन, वो ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेगा, राइट? डाइमिथिल आर्सोनिक एसिड की तो नोन है, और ये प्रैक्टिकली डिटरमाइन है, आप ये नहीं कह सकते सिर्फ एक पैरामीटर है। लोगों ने बकायदा इस पे एक्सपेरिमेंट करके देखे हैं कि आर्सिनोब्यूटेन की टॉक्सिसिटी बहुत कम आई है, उसके बाद आर्सिनोकोलिन की आई है, राइट? और उसके बाद डाइमिथाइल आर्सेनिक एसिड की आई है, इसीलिए हमने लिखा डी इज ग्रेटर देन, राइट, आर्सिनोकोलिन विच इज सी एंड देन ई। क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट है इसमें? पेपर आप मेरे से ले सकते हैं, मेरे पास पेपर पड़ा है, ठीक है? ठीक है, मैं उस चीज को आपको शेयर कर दूंगा, उस पेपर में सारी डिटेल है। चलिए जी, विद दिस वी विल स्टॉप हियर, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, कीप वर्किंग हार्ड। और आज मैं एक टेस्ट और शेयर करूंगा आप लोगों को एडवांस का, जिन्होंने हाइड्रोस्फीयर तक कर लिया है। आपकी प्रैक्टिस रेगुलर रहनी चाहिए। टेक केयर, गुड नाइट।